That has been clear in the smooth transition from the cost-based pricing regime of DPCO 1995 to the more complex and nuanced pricing regime of market-based pricing in DPCO 2030. Over the years, last 25 years, NPPA has contributed significantly to the noble goal of providing affordable medicines for all, fixing ceiling prices for essential medicines and devices. In fact, NPPA has till date, till end of July, fixed the ceiling prices of 890 scheduled formulations of medicines and retail prices of over 2,000 formulations under the new drugs. Quietly behind the scenes, in the most difficult of circumstances, even when staff and officers were afflicted by the disease and in one case succumbed to COVID. I think it is a demonstration of the dedication and commitment of this organization to the greater goal of patient well-being. Of late in its evolution, success has also been observed in applying a new modality, which is commonly called trade margin rationalization, in regulating prices of anti-cancer drugs in 2019 and certain medical devices in 2021, bringing down prices by up to 50 to 90% while improving availability. This has given confidence that NPPA is not just a traditional conservative regulator, but one that is ready to explore innovative methods and methodology, and one that is capable of balancing the interests of all stakeholders, including patients, healthcare providers, and manufacturers. Now, in its efforts to be a data-driven and evidence-based regulator, which is in constant touch with the ground realities, 3 recent initiatives of NPPA are noteworthy. 1, PMRUs, price monitoring units, have been set up in 25 states. This is the first time that NPPA has a presence in the state. Under the aegis of our state drug controllers, with the objective of monitoring the notified prices, detection of violation of the provisions of DPCO, collection and compilation of market-based data, and creating general awareness. Thanks to the PMRU's Honorable Minister, you would be happy to know that we now have market data on a weekly basis of a large number of drugs that are used in the COVID pandemic management. Second, NPPA has launched in 2015 the Integrated Pharmaceutical Database Management System. It is called IPDMS. Today, in the august presence of our Honorable Minister, NPPA will be unveiling 2.0 IPDMS, which we hope will improve the ease of transaction of the industry with NPPA. This is part of the general approach of improving the ease of doing business. And third, NPPA will be launching a new version of Pharma Sahi Daam mobile app, which will not only provide sufficient, adequate, and authentic information on prices to the patients and to the community at large, but it will also enable easy registration and tracking of complaints which are lodged with NPPA for its attention. And it is in this direction that today we have a technical session on robust data collection for policy making in pharma and medtech sector, particularly since the medical devices sector is coming up in a good way and the government is supporting the growth of the sector, and I believe it will be a new area for NPPA to address itself to. Honorable Minister and dear friends, all of you are aware that pricing control opens up continuous debate, and there is a range of views expressed by various stakeholders. Different countries have adopted different models in this respect. In our country, it is the endeavor of government to support investment and innovation by industry while ensuring affordability for patients. You can appreciate that price regulation is only one facet
in government's drive and commitment to make medicines and medical devices affordable. The Ayushman Bharat and the Jan Ayush Yojana, they expand access to public health and extend insurance and reimbursement for patients, thereby reducing the out-of-pocket expenditure. The production-linked incentive, the PLI schemes which are launched by DOP, help the industry to expand manufacturing and thereby increase the availability of medicines, including innovative medicines made domestically. PM Jan Aushadhi Pariyojana provides affordable medicines throughout the country through about 8,700 kendras. All of these initiatives provide savings of several thousands of crores annually to patients on the purchase of medicines. It is in this broader context of a range of interventions that NPPA will be moving forward to continuously improve upon a progressive, patient-centric pricing framework as we move into the Amrit Kal for our country. I can say with confidence that the institution NPPA has every reason to be proud of its achievements. At this stage, I recall the contribution of past chairpersons and member secretaries, as well as all those who have been associated with the growth of this unique institution. In closing, I would like to thank all of those who have been involved in organizing the 25th year celebration, particularly Chairperson NPPA, MS Member Secretary NPPA, JSDOP and their teams. Thank you so much for being management system, that is IPDMS 2.0. दवाइयाँ उचित मूल्य पर सुगमता से देशवासियों को उपलब्ध होती रहें, ये सुनिश्चित करने के लिए और जन जन को इसका लाभ मिले, इस उद्देश्य से NPPA निरंतर कार्य कर रहा है और डिजिटल इंडिया को केंद्र में रखते हुए सेवाओं को और बेहतर करने का कार्य निरंतर जारी है। इसी क्रम में IPDMS 2.0 जो है आज माननीय मंत्री जी के कर कमलों द्वारा लॉन्च किया जाएगा। आप सबकी कंठध्वनि के बीच में माननीय मंत्री से निवेदन करूंगी, कृपया इस ऐप को डिजिटली लॉन्च करने की जरूरत करें। IPDMS 2.0 Integrated Pharmaceuticals Database Management System version 2 upgrades the current IPDMS with latest technological interface. IPDMS 2.0 is an integrated responsive web-based application for manufacturers, importers, marketers, distributors, consumers, price monitoring resource units, PMRUs, in the pharmaceutical and medical devices sector. An online system for the pharmaceutical as well as the medical device industry that will facilitate the stakeholders to connect with National Pharma Pricing Regulator from across the country without the need of visiting the office. A change that will ensure a more efficient, transparent and time-bound online functioning. A change that will optimize synergies in operations to promote government's thrust on ease of doing business as it would provide a single window for submissions of various forms as mandated under DPCO 2013. A change that will facilitate the stakeholders to connect with National Pharma Pricing Regulator as multi-instance architecture of IPDMS 2.0 has the capability to connect multiple users over a public network infrastructure. A change that will facilitate consumers to access information on pricing and availability of vital medicines. A change that is part of making India digital. फर्मा सही दाम ऐप, जैसा कि इसके नाम में ही निहित है, ये एक ऐसा ऐप है जो दवाई मांगकर्ता यानी उपभोक्ता को दवाइयों के सही दाम से अवगत कराता है, साथ ही उसकी उपलब्धता यानी इसमें मांगकर्ता की यदि कोई शिकायत है, ग्रीवांसेस हैं, तो वो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से रजिस्टर करवा सकते हैं। हम माननीय स्वास्थ्य मंत्री से निवेदन करेंगे, कृपया इस ऐप को डिजिटली लॉन्च करें।
की मदद से दवा के सही दाम की जानकारी और उससे संबंधित शिकायत का समाधान अब उपभोक्ता अपने मोबाइल पर ही पा सकते हैं। फार्मा सही दाम मोबाइल ऐप के अपडेटेड वर्जन के जरिए, जिसमें कई नए फीचर्स भी हैं। ये ऐप हिंदी और अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध है। उपभोक्ता इस ऐप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके दवा की कीमत खोजे पर जाकर हर बार किसी भी दवा का सही नाम जान सकते हैं और दवाइयों के विकल्पों की भी खोज कर सकते हैं। इस ऐप में स्पीच रिकग्निशन की सुविधा भी उपलब्ध है। इस ऐप के द्वारा ग्राहक बहुत आसानी से शेयर बटन के जरिए किसी को भी दवाइयों और उनके मूल्यों की जानकारी को साझा कर सकते हैं। दवा के अधिक दाम की शिकायत भी इस ऐप के द्वारा की जा सकती है। शिकायत दर्ज करने के लिए ऐप के शिकायत प्रबंधन सेक्शन में शिकायत दर्ज करें पर क्लिक कीजिए। फिर शिकायत के प्रकार का चुनाव कीजिए, जैसे कि अधिकृत मूल्य से अधिक कीमत, दवा की अनुपलब्धता यानी कमी, एनपीए के बिना मूल्य अनुमति के नई दवा की बिक्री या आपूर्ति की मनाही। वेरिफिकेशन के लिए आपके मोबाइल पर OTP भेजा जाएगा और शिकायत पंजीकृत हो जाएगी। इस सेक्शन में आप अपनी पिछली शिकायत की स्थिति और समाधान का विवरण भी देख सकते हैं। इसलिए अपने मोबाइल में फार्मा सही दाम मोबाइल ऐप डाउनलोड कीजिए। फार्मा सही दाम मोबाइल ऐप, हर दवा उपभोक्ता की ताकत। और कह सकते हैं कि आने वाले समय में निश्चित ही इसके माध्यम से योजनाओं और नीतियों को बनाते समय, दिशा निर्देश तैयार करते समय सहायता मिलेगी। हम माननीय मंत्रीगण से निवेदन करेंगे, कृपया इस पुस्तिका का विमोचन करने की कृपा करें। An overview of drug pricing at NPPA 25-year Odyssey. बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। हमारे केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री माननीय श्री भगवंत खुबा जी का ये विशेष निर्देश रहता है कि दवाइयों का दाम जो है वह उचित व सम्यक होना चाहिए, जिससे कि ग्रामीण और सुदूर क्षेत्रों को उससे लाभ हो सके। हम माननीय मंत्री से निवेदन करेंगे, कृपया अपने आशीर्वचनों से हमें हिदायत करें। नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी के सिल्वर जुबली का इस शुभ अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में बड़े मंत्री जी आदरणीय डॉक्टर मनसुख मांडविया जी, फार्मा के सेक्रेटरी एनपीपीए के चेयरमैन श्री कमलेश पंत जी और मेंबर सेक्रेटरी एनपीपीए के डॉक्टर विनोद कोटवाल जी, और इस शुभ अवसर पर सभी राज्य के आए हुए मान्यगण, एकेडमिया और इंडस्ट्रीज। एनपीपीए 25 साल 2.5 दशक से देश के जनता का सेवा में, फार्मा इंडस्ट्री का सेवा में लगातार बदलाव के साथ बदलते हुए चेहरे को सेवा देने में सक्षम रहा है। आज 2 इंफॉर्मेशन की IPDS और सही दाम की 2 लोकार्पण भी हुआ है 25 साल के अवसर पर। एनपीपीए देश का जनता को सही दाम की दवाई मिले, समय पर मिले और इंडस्ट्री का साथ भी न्याय मिले, सभी विषयों को सभी का ध्यान में रखते हुए के लिए आपके प्रेरणादायक शब्दों के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बार आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत
लाल किले की प्राचीर से पूरे देश से ये आह्वान किया है कि हमें 5 प्रण लेके चलना है, जिसमें एक प्रण ये भी है कि आने वाले 25 वर्षों में हमें भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। हमारा सौभाग्य है कि हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी हमेशा हम लोगों को ये कहकर प्रेरित करते हैं कि आने वाला समय भारत का है, और मेडिकल फील्ड की जब बात होती है तो उसमें इनोवेशंस की बात हो, मेडिसिन की बात हो, इक्विपमेंट्स की बात हो, वैक्सीनेशन की बात हो, बहुत कुछ हम कर सकते हैं। निरंतर वो हम सबको प्रेरित करते रहते हैं। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में माननीय मंत्री से निवेदन करने जा रही हूँ क्योंकि आपने आपकी बच्चों से हमें अनुग्रहित करने की कृपा करें। 25 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित आज के कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित मेरे सहयोगी मंत्री भगवंत खुबा जी, हमारे विभाग की सेक्रेटरी एस अपर्णा जी, एनपीपीए के चेयरमैन कमलेश पंत जी, सेक्रेटरी एनपीपीए विनोद कोटवाल जी, सभी उपस्थित भाइयों एवं बहनों, मुझे बताया गया है कि यहाँ इंडस्ट्रीज भी है, यहाँ स्टूडेंट भी है और ऑफिशियल्स भी है। एनपीपीए का 25 साल पूर्ण होने के अवसर पर आज इस कार्यक्रम में 3 एक बुक और 2 डिजिटल प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस किया गया। एक है इंटीग्रेटेड डेटा, पहले एएप थी ही, ये डिजिटल प्लेटफॉर्म था ही, उसमें अपेक्षा है कि सभी इंडस्ट्रीज अपना डेटा उस पर, मेडिसिन का डेटा डालें। मुझे जब इस कार्यक्रम के बारे में बताया जा रहा था तब मैंने पूछा था, तो मुझे बताया कि अभी 800-900 इंडस्ट्रीज ने डेटा फीड करना शुरू किया है। अभी मैं मानता हूं कि 3000 से अधिक हमारी कंपनियां हैं। सब लोग अपना डेटा डालना शुरू करें, बहुत आवश्यक है, क्योंकि कोई भी व्यवस्था सरकार की बनती है तो ये देश की हमेशा यही चिंता रही है कि हम सब लोग बोलते हैं और दुनिया में जाके कोई मीटिंग अटेंड करके आते हैं, या तो दुनिया में आप सब लोग फार्मा इंडस्ट्रीज होने के नाते दुनिया के साथ संपर्क में रहते होंगे क्योंकि आप एक्सपोर्ट करते होंगे, तो वहां डेटा ए है, डेटा ए है, उसके बारे में बात करते हैं। हमें 2 डेटा की आवश्यकता है। एक डेटा डिपॉजिटरी तैयार हो देश में, और दूसरा मेटा डेटा की आवश्यकता है। डेटा ही केवल नहीं, लेकिन डेटा आपस में बातचीत करे, ये भी बहुत आवश्यक होता है। ये देश बहुत बड़ा देश है, देश में ह्यूज डाइवर्सिटी है, 1.3 बिलियन पॉपुलेशन है, उसकी हेल्थ की चिंता करना बहुत आवश्यक है। और इस दृष्टि से फार्मा इंडस्ट्रीज केवल मेडिसिन का मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती है दोस्तों। आप केवल इतना ही विचार से आप इंडस्ट्रीज चलाते हो कि हमारा कॉमर्स है, हम मेडिसिन बनाते हैं, टैबलेट बनाते हैं, इंजेक्टेबल बनाते हैं, देश में बेचते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं। जो इतनी सोच है तो ये भारतीय सोच में कुछ कमी है दोस्तों। हमारी सोच अलग सोच है। हम केवल कॉमर्स के लिए काम कर रहे हैं क्या? जी नहीं, हम हमारे देश की स्वास्थ्य की सुविधा को पूरी करने के लिए भी हमारी जिम्मेवारी निभा रहे हैं। इस दृष्टि से, इस एंगल से हमें सोचना होगा, क्योंकि आप कोई मेडिसिन बनाते हैं तो देश के मरीज उससे स्वस्थ होते हैं, यानी कि देश का नागरिक का स्वास्थ्य के साथ आपका प्रोडक्शन जुड़ा हुआ है। इस दृष्टि से
फार्मा इंडस्ट्रीज का एक महत्व है और हम ये महत्व को समझते हैं। यही प्लेस पर, यही स्थान पर शायद अभी 1 महीना नहीं हुआ, एक कार्यक्रम आयोजित हुआ था जिसमें हमने रिसर्च पॉलिसी इंट्रोड्यूस की थी। इनोवेशन को कैसे महत्व देना, रिसर्च को कैसे महत्व देना, कॉमन फैसिलिटी तैयार हो और इंडस्ट्रीज को सपोर्ट मिले, ऐसा एटमॉस्फेयर कैसे तैयार करना। दोस्तों, देश की जरूरियात भी है और हमारी स्ट्रेंथ भी है। जो हमारी स्ट्रेंथ है उसको हम संयोजे। हमारी शक्ति है, कोई अच्छा प्लेयर है, अच्छा दौड़ता है, उसको थोड़ा ट्रेन किया जाए तो मेडल लेके आएगा। वैसा ही हमारी इंडस्ट्रीज का है। हम फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड है, हम फार्मा सेक्टर में अनुभवी लोग हैं। फार्मा सेक्टर में हमारा अनुभव को हम थोड़ा सा स्ट्रेंथन करें तो हम दुनिया में बहुत कुछ दे सकते हैं, दुनिया की सेवा करो। कंटेनर भर के हम हमारे प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि यही इंडस्ट्रीज, यही ब्रेन पावर, यही मैन पावर के आधार पर आने वाले दिनों में हम लिफाफा में एक कंटेनर का क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग करके इनोवेशन के आधार पर ऐसी प्रोडक्ट बनाए जो प्रोडक्ट एक लिफाफे इक्वल टू एक कंटेनर हो बाय वैल्यू। और इसलिए एनपीपीए का रोल हमें इस दृष्टि से देखना होगा। वो रेगुलेटर है, इस दृष्टि से मत देखो, ये फैसिलिटेटर है। केवल रेगुलेशन करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए एनपीपीए ने अपनी भूमिका नहीं निश्चित की है। एक फैसिलिटेटर के रूप में कैसे काम करे, देश में मेडिसिन की उपलब्धता बनी रहे, मार्केट में कोई मेडिसिन की क्राइसिस तो नहीं चल रही है, उसकी निगरानी करें। आप जो डेटा फीड करेंगे, डेटा के आधार पर वो देश की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, प्राइस, उसका एनालिसिस करें। और एनालिसिस के आधार पर देश की फ्यूचरिस्टिक रिक्वायरमेंट, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, कहाँ किसको जोर देना है, उसके लिए वो प्लानिंग कर पाए। इस दृष्टि से एनपीपीए की भूमिका ये बहुत महत्वपूर्ण रही है। मैं चाहता हूं कि एनपीपीए का रोल विथ इंडस्ट्रीज, जब प्राइस, सीलिंग प्राइस फिक्स होती है, वो भी ऐसी ही प्राइस है, उन्होंने बनाई हुई प्राइस नहीं है। आप सब लोग जो प्राइस में, जिस प्राइस में मार्केट में माल बेचते हो, मेडिसिन बेचते हो, उसका एवरेज किया हुआ है। और ये फार्मा सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है, हेल्थ सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें महंगी, बाकी कोई चीज कमोडिटीज हम लेने के लिए जाए तो महंगी चीज को हम नहीं लेंगे, सस्ती चीज को पहले सिलेक्ट करेंगे। एक ही चीज हमें लेनी है तो 3 जगह पे पूछेंगे, भाई कहाँ सस्ती मिलती है, तो सस्ती मिलेगी हम लेंगे। लेकिन फार्मा में अलग है, मेडिसिन में अलग है। मेडिसिन में ऐसा है कि महंगी है तो अच्छी है, महंगी है तो अच्छी है, इसलिए कोई ऐसी महंगाई ना बढ़े। मैं हमेशा जेनेरिक मेडिसिन पर जोर इसलिए दे रहा हूं, सस्ती है। जन औषधि परियोजना इसलिए चलाई गई है, सस्ती भी, क्वालिटी भी, सस्ती भी है, क्वालिटी भी है। और क्वालिटी हमारा स्वभाव है। इंडिया की इंडस्ट्रीज की एक शाख बनी हुई है, दुनिया में हम एक्सपोर्ट करते हैं और हमारी एक्सपोर्ट दुनिया में आज बढ़ रही है। उसका रीजन क्या है? कल परसों में सऊदी अरेबिया था, तो वहाँ की गवर्नमेंट के साथ और वहाँ की कंपनियों के साथ मेरी मीटिंग हो रही थी। तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छी बात कही और मुझे सेटिस्फेक्शन हुआ कि योर इंडस्ट्रियलिस्ट इन योर कंट्रीज एज ट्रस्टेबल, हमें
इंडियन इंडस्ट्रीज पर ट्रस्ट है, भरोसा है, भरोसा मुझमें लायक है। और आप लोगों ने प्रूव करके दिखाया है। मैंने देखा जब कोविड क्राइसिस का हम मैनेजमेंट कर रहे थे, दुनिया मेडिसिन की क्राइसिस सफर कर रही थी। मोदी जी ने कहा था कि हमें देश की जरूरतों को तो पूरा करना है, लेकिन दुनिया को भी मदद करनी चाहिए। और सभी फार्मा इंडस्ट्रीज को ओपन रखने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग चालू रखने के लिए लॉकडाउन पास दिया गया था। आप सब लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग उस वक्त चालू रखा था। देश में मेडिसिन की किल्लत नहीं रही। इतना ही नहीं, लेकिन दुनिया को भी हमने मदद की थी। और उस वक्त डेली प्रतिदिन 6 से 7 प्लेन इंडिया में लैंड होते थे केवल मेडिसिन लेने के लिए। दोस्तों, मुझे आज आप पर गौरव हो रहा है कि 150 कंट्री में हमने मेडिसिन एक्सपोर्ट की। किसी ने भी ऐसा नहीं कहा कि इंडिया ने पुरियस क्वालिटी की मेडिसिन हमें भेजी, हमें वापस भेजनी पड़ी। कोई कंट्री से ये शिकायत नहीं आई और कोई कंट्री से ये भी शिकायत नहीं आई और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर कभी ये डिबेट नहीं हुई। कई बार ऐसा होता है, परिस्थिति का लाभ उठाते हैं। क्राइसिस है तो प्राइस बढ़ा दो। मैं अभी कई विभाग देख रहा हूं तो कई सेक्टर में मैंने देखा है कि क्राइसिस है तो प्राइस बढ़ जाता है, लेकिन हम लोगों ने प्राइस भी नहीं बढ़ाया और दुनिया को क्वालिटी मेडिसिन उपलब्ध कराई। इससे नहीं केवल हमारी कंपनी की शाख बढ़ी, दोस्तों भारत की भी दुनिया में शाख बढ़ी है। हमें दोनों विषय की चिंता करनी है। और PLI 1, PLI 2 स्कीम हम क्यों लाए? PLI 1 स्कीम जब हम लाए कि कई ऐसे क्रिटिकल API, हमें दुनिया पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए, उसका मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ही होना चाहिए। PLI 1 स्कीम हम अच्छी तरह से इंप्लीमेंट करने में सक्सेस हो रहा है। 43 API में से 25-26 API का ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में चालू हो गया। बाकी 4-5 टाइप का API है, फर्मेंटेशन बेस्ड API है, उसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं ताकि क्रिटिकल API, हमारे क्रिटिकल रिक्वायरमेंट, मेडिसिन नहीं होगी तो इतना बड़ा देश में हम किसके ऊपर डिपेंडेंट होकर रहेंगे? नहीं चलेगा। दोस्तों, मोदी गवर्नमेंट इज फोकस गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट इज प्रो पुअर्स, प्रो फार्मर्स बट इंडस्ट्रीज फ्रेंडली गवर्नमेंट। हम कोई डिसीजन करते हैं तो डिसीजन केवल हमारे अफसर और मिनिस्टर बैठ जाए और डिसीजन हो जाए, ऐसा नहीं होता है। हम स्टेक होल्डर कंसल्टेशन, क्योंकि हम कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं? देश के लिए कर रहे हैं और देश को आवश्यक है इंडस्ट्रीज की। तो इंडस्ट्रीज के लिए जब हम कोई डिसीजन करते हैं तो इंडस्ट्रीज के साथ बातचीत होना बहुत आवश्यक होता है। कंसल्टेशन जब मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं होता है तब तक मैं मेरे अफसर को कहता हूं कि और फिर एक बार बात करिए। जब कंसेंसस नहीं बनता है, सभी की एक राय नहीं होती है, तब तक हम डिसीजन नहीं करते हैं दोस्तों, ताकि जो हम हमारा गोल को अचीव करने की दिशा में एक साझा प्रयत्न करने में सक्सेस हो रहा है। और इसलिए आने वाले दिनों में हम केवल हमारी क्रिटिकल रिक्वायरमेंट पूरी करें। PLI 1 आई, लेकिन हमने तय किया है कि जो दुनिया का मार्केट है उसमें हमारी एक्सेसिबिलिटी बढ़ाना है। दुनिया के मार्केट को हमें कैच करना है। क्या करना चाहिए? तो PLI 2 लेके आए। PLI 2 का उद्देश्य है देश की जरूरियात के अलावा मास प्रोडक्शन करके दुनिया के मार्केट को हम कैसे प्रभावित करें। और जब ये डिसीजन करने जाते हैं, तब जब इंडस्ट्रीज के साथ कंसल्टेशन होता है तो आपकी ओर से भी बात आई कि उसमें से MSME नहीं छूटनी चाहिए। और इसलिए MSME के लिए भी PLI 2 में स्पेशल प्रावधान किया गया कि इतने % तो ये कंपलसरी MSME को ही देना है, बाकी कोट कर सकते हैं आगे।
ऐसा करके आने वाले दिनों में हमें हमारी फार्मा इंडस्ट्रीज को आगे ले जाना है। और जब फार्मा इंडस्ट्रीज डेवलप हो, नंबर ऑफ न्यू प्लांट आए, लेकिन ये प्लांट और रिसर्च और इनोवेशन के साथ आए, देश में इंडिजिनियस रिसर्च हो। दोस्तों, क्षमता की कहाँ कमी है देश में। एक बार आज राइजिंग सेक्टर में हम जाते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर आज आईटी हब इंडिया है। जब राइजिंग था तब हम लोग आ गए, तो हमने आज आप हैदराबाद जाओ, बेंगलुरु जाओ, आईटी हब आज सारे दुनिया का आउटसोर्स इंडिया में हो रहा है। वैसे ही दूसरा दोस्तों, डिजिटल हेल्थ में डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग करके ये राइजिंग सेक्टर में मुझे पहले ऐसा था कि दुनिया बहुत कुछ आगे पहुंच गई होगी, लेकिन मैं जब इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर जाके बात करता हूं तो पता चलता है कि इंडिया उसमें दुनिया से आगे है। दोस्तों, देश का ब्रेन पावर, यह ब्रेन पावर और मैन पावर की कभी कमी नहीं थी, नहीं है। सवाल है उसको चैनलाइज करके, उसको पहचान के, उसको सपोर्ट करना। यही सीक्रेट है ना भाई। मोदी जी ने हमारे साइंटिस्ट को वही कहा था कि भाई ये कोविड क्राइसिस के सामने लड़ने के लिए क्या करना होगा। तो हमारा साइंटिस्ट लोगों ने कहा कि वायरल इन्फेक्शन है, वैक्सीन ही उसका उकेल है। तो ये 1.3 बिलियन पॉपुलेशन, वैक्सीन का क्या करेंगे, दुनिया से इतना इंपोर्ट करेंगे तो देश की क्या हालत होगी। मोदी जी ने चैलेंज दिया था कि हमारे साइंटिस्ट को कहा था कि हमें रिसर्च करना चाहिए, और हमारा ही साइंटिस्ट ने रिसर्च भी कर लिया, हमारी कंपनीज ने मैन्युफैक्चरिंग भी कर लिया। दुनिया में पहला डोज दिसंबर में लगा, इंडिया में पहला डोज जनवरी 16 तारीख को लगा। कर सकते हैं दोस्तों। और इसलिए कई बार मेरे इंडस्ट्रीज बॉडी के साथ मीटिंग होती है, तब मैं बोलता हूं बताइए क्या करना है, लेकिन एफर्ट जॉइंटली होना चाहिए। सरकार करेगी, हम कहेंगे इंडस्ट्रीज करेगी, जी नहीं, सरकार और इंडस्ट्रीज साथ में मिलके करें। और साथ में मिलके करने के लिए क्या करना चाहिए, सरकार का डोर हमेशा आपके लिए ओपन है। आप अपने सुझाव रखना चाहते हैं, आप अपना प्रेजेंटेशन के माध्यम से कार्य योजना हमारे सामने रखने चाहते हैं, हम हमेशा अलाउ करते हैं। आइए हम साथ में बैठ के बात करें, ताकि हम आने वाले दिनों में फार्मा सेक्टर की योजना को अच्छी तरह से बना सके और इंप्लीमेंट उसका कर सके। उसका मॉनिटरिंग करने के लिए, मॉनिटरिंग कैसे करें, डे टू डे मॉनिटरिंग के लिए हमारा एनपीपीए के माध्यम से उसका असेसमेंट होता रहे। ये बॉडी मेरी दृष्टि से इस टाइप की बॉडी है, वो दो चीजें सुनिश्चित करती है। देश में एफोर्डेबल, जब प्राइस सीलिंग होगी, सोचिए जब प्राइस सीलिंग होती है तो ऑटोमेटिक वो मेडिसिन एफोर्डेबल हो जाती है, और जब वो एफोर्डेबल हो जाती है तब वो एक्सेसिबल हो जाती है। उसको एक्सेसिबल क्योंकि महंगी दवा के गरीब लोगों की पहुंच से बाहर होती है। दोस्तों, जो लोग, क्योंकि हम जनप्रतिनिधि हैं, हम आज आपके सामने यहाँ मीटिंग कर रहे हैं, तो शाम को गांव में जाके बैठना होता है। नीचे क्या चलता है, धरती की तासीर क्या है, हमारे देश की रियल स्थिति क्या है, हमें सोच के डिसीजन लेना होता है। कई ऐसे गरीब परिवार हैं देश में जो केवल वो डायग्नोसिस कराने के लिए तो सरकारी अस्पताल पर पहुंच जाते हैं। सरकारी अस्पताल में उसको मेडिसिन जो उपलब्ध हो मिल जाती है, कई बार उसको मेडिसिन बाहर से लेनी होती है। जब वो फार्मेसी पर जाता है उस वक्त वो प्रिस्क्रिप्शन देता है, और प्रिस्क्रिप्शन देता है और वो मेडिसिन देता है, तो मेडिसिन कई बार 1000 का बिल होगा, उसके जेब में नहीं होने से ये फार्मासिस्ट को कहता है कि आधी वापस लीजिए, मेरे पास 500 रुपीज़ भी है, रुपीज़ ही है।
ये बात को भी देश को समझना है। मोदी जी ने बातों को भली भांति समझा है और इसलिए मोदी जी ने कहा था एक बार कि देश के कोई गरीब बिना मेडिसिन मिलने से उसके यहाँ मृत्यु की नौबत नहीं आनी चाहिए। उसमें से ये जन औषधि परियोजना निकली है। जो जन औषधि परियोजना का काम क्या है? वही काम है 8,500 से अधिक जन औषधि केंद्र देश में चल रहा है। जेनरिक, एफोर्डेबल और क्वालिटी मेडिसिन मिल रही है। और दोस्तों, उसका अनुभव कई बार सोशल मीडिया से कोई गरीब व्यक्ति एक फार्मेसी पर मेडिसिन लेने के लिए, जन औषधि केंद्र पर मेडिसिन लेने के लिए गया हो और उन्होंने मेडिसिन देने के बाद 500 रुपीस दिया हो और फार्मासिस्ट कहे कि आपको 200 रुपीस बचता है, वापस देता है, तो कहता है कि नहीं, हर बार मैं 500 के ही लाता हूँ। तो जन औषधि केंद्र के फार्मासिस्ट बोलता है कि हर बार आप 500 रुपीस की लाते थे, लेकिन आप अदर फार्मेसी पर जाते थे, आज आप जन औषधि केंद्र पर है, आपका 200 रुपीस बच रहा है, आप वापस लेके जाइए। दोस्तों, एक गरीब कल्याण योजना का तरीका है और इसलिए हमें जेनरिक मेडिसिन को प्रोत्साहित करना है, इंडस्ट्रीज को प्रोत्साहित करना है, देश में रिसर्च और इनोवेशन पर बल देना है। हमें क्वालिटी मेडिसिन मैन्युफैक्चर हो उस दिशा में प्रयास करना है। तब दुख होता है जब कोई मेडिसिन पकड़ी जाती है, कोई हमारा ड्रग्स कंट्रोलर कोई फार्मेसी की विजिट करता है और स्पूरियस पाई जाती है। दोस्तों, ये सब चीज़ों में हमें एज ए एसोसिएशन, एज ए इंडस्ट्रीज, पर्टिकुलर नहीं, हम सब लोगों की जिम्मेवारी है। हमारे यहाँ हेल्थ ये सेवा का सेक्टर है। हेल्थ हमारे यहाँ केवल कॉमर्स नहीं है। फार्मेसी में इसलिए जब शुरुआत की बात की, हमें केवल कॉमर्स के साथ नहीं देखना है। मेरे देश के हर इंडस्ट्रियलिस्ट, फार्मा इंडस्ट्रियलिस्ट देखे, क्वालिटी के साथ कोई भी बार्गेनिंग करता हो, हम एसोसिएशन से उसको बाहर निकालना होगा। ऐसा नहीं कर सकते हम। मेरे देश के नागरिक की हेल्थ के साथ छेड़ा होगा। ये भाव से हम जब काम करेंगे दोस्तों, तब हमारी शाख और बढ़ जाएगी। और इसलिए आज एनपीपीए अपने 25 साल की सालगिरह के अवसर पर मैं एनपीपीए के चेयरमैन, इसके सेक्रेटरी को अभिनंदन करता हूँ, जिन्होंने रुचि लेके कार्यक्रम का आयोजन किया। मैं देख रहा था अभी हमारा कार्यक्रम के बाद भी आपका नेक्स्ट सेशन चलने वाला है। डिबेट एंड डिस्कशन बहुत आवश्यक होता है। आपके प्रेरणादायक विचारों के लिए, आपके प्रोत्साहन के लिए और आप धन्यवाद ज्ञापन के लिए हम निवेदन करेंगे सदस्य सचिव एनपीपीए डॉक्टर विनोद कोतवाल जी से। It is a matter of privilege for me to propose this vote of thanks at the inaugural session of this event that we have organized to commemorate 25 years of National Pharmaceutical Pricing Authority's existence. I would like to begin by thanking our chief guest, Dr. Mansukh Mandaviya ji, Honorable Union Minister for Chemicals and Fertilizers and Health and Family Welfare, Government of India, for guiding as well as inspiring us to assiduously work towards the goal of making drugs available as well as affordable to the citizens of this country. Sir, I would also like to inform you that this ties in with your overall vision of making affordable healthcare available to all. Thank you very much, sir. I would like to thank Shri Bhagwant Khubha ji, Honorable Minister for State Chemicals and Fertilizers and New and Renewable Energy, Government of India, for his continuous guidance and support. Sir, we are equally committed to making available affordable medicines to all. Thank you very much, sir. Madam S. Aparna, Secretary, Department of Pharmaceuticals, Government of India, the guiding force behind this event. Ma'am, you inspire us to strive for perfection. Thank you very much, ma'am. Shri Kamlesh Kumar Pant, Chairman, NPPA, for his leadership, quiet strength and continuous support for organizing this event. Thank you very much, sir.
We are so happy to note the presence of representatives from industry, from state and central governments, from PMRUs, academia, think tanks, civil society, patient advocacy groups, and our other stakeholders, friends from media. We are honored by your presence at this event today, and it means a lot to us because it will continue to encourage us to perform our functions with more vigor and zeal. As was noted by all the dignitaries, the launch of IPDMS 2.0 and Pharma Sahi Dam app strengthen our resolve for technology deployment initiatives. And here I would like to tell that this has been possible with the active involvement of all divisions of NPPA, because this is a system which will facilitate not only in the industry but will also bring in efficiency in our inner working. So I would like to thank all the divisions of NPPA who have worked vigorously for the past 2-3 months to ensure that we are able to launch this big initiative today. Thank you very much. And here I would also like to thank our technical partner, Center for Advanced Computing, who have helped us in bringing these two initiatives and dedicating them to the nation today. Thank you. So I would like to inform, as Honorable Union Minister said in his remarks, that we believe in consultation and collaboration. Sir, I would like to inform you that as we were working towards launching this IPDMS 2.0, we have had several rounds of discussions with the industry, and we have taken their inputs to bring this final program to you. However, we would look forward to your valuable inputs and feedback as you start using it. As they say, one can always strive for perfection, and we look forward to receiving that feedback from you once you start using the system. And bringing this publication, which chronicles 25 years of NPPA journey and the drug pricing regulatory system framework in the country, has been very special to us because it was an in-house effort which was made. So I would like to thank the whole of team NPPA under the guidance of Chairman NPPA that we have been able to bring this publication to you today. As Secretary Ma'am said in her remarks that we also need to thank the previous chairmen, secretaries and officers who have worked and as we celebrate this 25 years of NPPA journey and its achievement today, I also see that there are some familiar faces of officers who have worked in NPPA and are present here. Would like to thank them for their presence today. And last but not the least, thank you team NBCC and the event management agencies for helping us organize this event in a befitting manner. As we complete 25 years in service to the nation, I would like to assure both the Honorable Ministers, everyone present here and whoever is listening to us, that we will continue to work as per the mandate given to us and ensure that everyone has access to affordable medicines which are available to all. Thank you again for your presence, and it means matters a lot to बधाई और आने वाले अमेरिका में बच्चों तक इसी तरह से आप अच्छा कार्य करते रहेंगे, ऐसी हमें आशा ही मेरी विश्वास है। बहुत बहुत साधुवाद आप सभी को। गल पता